السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انہ لا يحب المستكبرین، صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کو درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلامیہ، آپ حضرات التاریخ نیٹ ورک کو آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، اور التاریخ نیٹ ورک کے میں حاضر خدمت محمد شہید رضا افطاری، نیپال، اٹہروا خریانی۔ آپ حضرات بغور سماعت فرما رہے ہوں گے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ قرآن و حدیث کے بارے میں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انہ لا يحب المستكبرین، انہ لا يحب المستكبرین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مستکبر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مستکبر یعنی مستکبر اس کو کہتے ہیں جو تکبر کرتا ہے، اور میں آپ کے سامنے تکبر کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ حضرات بغور سماعت فرمائیے گا کہ اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے تو تین چیز سے بری ہونا چاہیے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر جو شخص چاہتا ہے کہ میں جنت میں جا سکوں تو وہ تین چیز سے نجات پا جائے۔ پہلی شرط، تین چیز، جس میں پہلا ہے خیانت، دوسرا قرض، اور تیسرا ہے تکبر۔ یعنی اس میں تیسرا ہے تکبر، یعنی جو شخص تکبر سے بری ہو جاتا ہے، بری ذمہ ہو جاتا ہے، تکبر سے بچ جاتا ہے، قرض سے بچ جاتا ہے، قرض کو ادا کر دیتا ہے، اور خیانت کرنے سے بچ جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ کل بروز قیامت جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو یقیناً ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت میں جانے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن اگر انہی ذرائع میں سے، یعنی بہت سے ذریعہ ہے، بہت سے نمونہ ہے، طریقہ ہے، لیکن انہی میں سے اگر ہم تین چیز کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخلہ ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سارے حضرات تکبر سنتے ہوں گے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر اسلامی بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے تکبر کہتے کس کو ہے، تکبر کا تعارف کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ تکبر اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھنا، یعنی دوسروں کو سب سے چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور جسٹ اپوزٹ، یعنی اس کا الٹا اگر کیا جائے، مثلا اس کا الٹا کریں گے تو یوں ہوگا کہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں، تو اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے دوسروں کے مقابلے میں، اس سے عاجزی کرتے ہیں، اور عاجزی کرنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے، لیکن تکبر کرنا حرام ہے۔ تکبر دنیا کے اندر پہلی گناہ ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے تکبر کیا تھا۔ آپ حضرات ابلیس، شیطان وغیرہ کا نام سنتے ہوں گے، اور ابلیس جو پہلے فرشتوں کا سردار تھا، ابلیس جو پہلے فرشتوں کا سردار تھا،
लेकिन आज वो इधर उधर भटक रहा है, मुसलमानों को गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है, करवाता जा रहा है। तो इब्लीस क्यों कैसे जन्नत से उतरा और क्यों शैतान बन गया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मुकम्मल तफसील कुरान पाक की पहली पारा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुतला पैदा किया, बनाया, उसमें रूह डाली, तो तमाम फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ये फरिश्तों इनको सजदा करो। तो जितने फरिश्ते थे सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन उन्हीं में से जो मेन था, जो सरदार था, वो इब्लीस, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इब्लीस के अंदर घमंडी था कि मिट्टी से बना हुआ है और मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं इसके सामने कैसे सजदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत से निकाल दिया। उसी वक्त से शैतान मुसलमानों के गुनाह पे गुनाह करवाता है। तो इससे मालूम होता है कि अगर आप कितने ही बड़े आबिद हो, जाहिद हो, मुजाहिद हो, इबादत गुजार हो, लेकिन अगर थोड़ी सी ज़र्रा बराबर भी आपके दिल में तकब्बुर आ जाएगा तो आपके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। कि इब्लीस सातों आसमान पर 7 रंग के नाम थे। किसी आसमान पर आबिद नाम रखा था, किसी आसमान पर जाहिद था, किसी आसमान पर आरिफ था, मगर उसको सिर्फ एक गुनाह ने उसके आमाल को बर्बाद कर दिया, वो सिर्फ तकब्बुर था। एक मरतबा हज़रत सैयदना दाऊद बिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर उठाया, यानी ऊपर सैर कराया, आसमान में सैर कराया, तो इतना ऊपर हो गए कि वो फरिश्तों की जो तस्बीह होती है, वो अल्लाह ताला के जो तस्बीह करते हैं उनको सुन लिया। इतना सुनना था, सुन लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए नबी, इतना मत सोचना कि मैं फरिश्तों का आवाज़ को सुन रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल के अंदर राय के दाना के बराबर भी अगर तकब्बुर होगा तो मैं जितना ऊपर तुमको उठाया हो उतना नीचे भी तुमको धंसा सकता हूँ। इससे मालूम होता है अल्लाह ताला का कौल से कि अगर आप कितने ही बड़े आलिम हो, हाफिज है, कारी है, और किसी पर तकब्बुर करते हैं, किसी को हकीर समझते हैं, किसी को छोटा समझते हैं, तो आप समझिए कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत को आप बिगाड़ रहे हैं। आज हम गौर करें कि हमारे माशरे के अंदर हर तरह की गिबत, चुगली, हसद, तकब्बुर सब चीज़ पाई जाती है, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं कि हम बोले जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने का मकाम है कि हम क्या बोल रहे हैं। आजकल के कुछ लोग हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं है दुनिया में। एक जुमला पर गौर नहीं करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दरअसल इसी जुमला के अंदर तकब्बुर है कि अपने आप को सबसे बड़ा समझा और दूसरों को कमतर समझा। यही तो तकब्बुर की तारीफ़ है। लेकिन ये अक्सरियत मौलाना वगैरह के अंदर पाई जाती है, तालिब इल्म के अंदर पाई जाती है। बल्कि माल और दौलत, घर बंगला, खेत वगैरह जितनी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, हर चीज़ में तकब्बुर पाई जाती है, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। लेकिन बोलते ही चले जाते हैं और समझते हैं कि सबसे बड़ा काबिल हम ही है, कि हमसे बड़ा कोई बोल ही नहीं सकता है। तो बिरादरान इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि जब भी कोई बात बोले तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए।
कि एक मर्तबा बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो बहुत बड़ा आबिद था, और एक वह जो बहुत बड़ा गुनहगार था। जब उस गुनहगार का गुजर उसी आबिद के पास से हुआ तो उस गुनहगार शख्स ने सोचा कि शायद मैं ही दुनिया इस बनी इसराइल के अंदर सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूँ। तो मैं उस आबिद के पास बैठ जाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर भी रहम फरमा दे। जब वो शख्स उसके पास बैठने गया, इतने में उस शख्स के अंदर तकब्बुर हो गया कि इतना कमतर आदमी अब मेरे साथ बैठे, मैं इतना बड़ा आबिद हूँ। जैसे ही इसके अंदर एक ख्याल आया तो उसने उस शख्स को, गुनहगार को, आबिद ने कहा उठो यहाँ से जाओ। इतना कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने के नबी को हुक्म दिया कि जाइए उन दोनों से कहिए कि शुरू से आमाल शुरू से करें, क्योंकि मैंने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया है। इसकी वजह यही है कि उसने तकब्बुर किया, और जो गुनहगार था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बख्श दिया है। और दूसरी रवायत के मुताबिक यह है कि जो आबिद था जब भी वो शख्स जाता था कहीं पर भी तो बादल का टुकड़ा उसके सर के ऊपर से जाता था। जैसे ही इसके दिल में ख्याल आया उसने उस शख्स को हटा दिया तो उसके सर से जो बादल का टुकड़ा था आबिद इबादत गुजार से उस गुनहगार बंदे के सर के साथ चलने लगा। इससे मालूम होता है कि इंसान कितने ही छोटा हो लेकिन उसको हकीम नहीं समझना चाहिए। न जाने किसके बुलंद मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा रखा हो, लेकिन लोगों पर जाहिर नहीं फरमाता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी इबादत गुजार होते हैं, दौलत वाले होते हैं, माल और दौलत वाले होते हैं, उससे भी चाहिए कि अपने माल और दौलत पर घमंडी न करे। न जाने इतना माल और दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है और एक सेकंड के अंदर आपके दिल में तकब्बुर आ जाएगा तो माल और दौलत कोई काम का नहीं रहेगा। अगर आप हजरात ने मेरी चैनल अख्तारी नेटवर्क को देख लिया है, वीडियो को देख लिया है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरे इस्लामी भाई को भी शेयर करें। हो सके आपकी शेयर से पहुंचाने से दूसरे इस्लामी भाई का ज़िंदगी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।